So good morning everyone. Today we will be doing a very important topic and the name of the topic is ranking and ordering test. अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें कुछ रैंक्स मतलब हमें जो है चीजों को अरेंज करना है. That is what is in this question. I have to arrange the things as I have to arrange the things as per what is being said. रैंक क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है? रैंक होता है, सपोज देर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, सपोज देर आर 47 स्टूडेंट्स इन द 39 स्टूडेंट्स इन द क्लास. अब इन स्टूडेंट्स को एक सवाल दिया जाए और इस सवाल को करने के बाद हाउ मच हु हैज डन करेक्ट, हु हैज नॉट डन करेक्ट, इस ऑर्डर को हम रैंकिंग ऑर्डर बोलते हैं. जो रैंक लिस्ट निकलती है दैट इज कॉल्ड एज द रैंकिंग ऑर्डर. एंड रैंकिंग that is called basically as the ranking. और जो order होता है that is if I want to arrange the students on the basis of their height, on the basis of their weight, or on the basis of their age, that will be called as the order. पर्सनली मुझसे पूछो तो आई डोंट फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन द रैंकिंग एंड ऑर्डर टेस्ट, बिकॉज basically I'm going to do the same thing. I'm going to arrange the this thing, arrange whatever is being given to me on the basis of whatever is being asked. ठीक है, तो पर्सनली मुझसे पूछो तो आई डोंट फाइंड एनी डिफरेंस हियर, बट यस देयर मे बी सम टेक्निकल डिफरेंसेस, but we are not going to go into detail of that. What we are required to do is we are required to solve the question, we are required to get the marks. That's it. बात खत्म. आगे चलते हैं. थ्योरी के हिसाब से there is nothing in the theory. थ्योरी के हिसाब से there is nothing in the theory, but what we have to do is we have to understand what the question is asking, and we have to solve the question. So straight away I will be solving the question. कुछ कुछ थ्योरी थी कि कुछ theoretical part है that if 5 persons are arranging and if the position of 2 of them are reversed, and that we have already done earlier. And अगर कभी जरूरत पड़ती है तो I will be definitely explain you. Now this is the question, please try. This is the question, please try the how many fives are there in the following sequence which are immediately followed by 3 but not immediately preceded by 7? Followed मतलब 5 के फॉलोड मतलब 5 के बाद. भाई एक बार ये नंबर ये देख लो भाई. फॉलोड मतलब आफ्टर, और प्रीसीडेड मतलब बिफोर. प्रीसीडेड मतलब बिफोर. ठीक है भाई, ये बिफोर है ना. फॉलोड मतलब फॉलोड मींस normally we say that car is following me, that car is coming behind me, and preceded means I am going behind that. ठीक है, तो अब देख लो भाई इसमें कितने पेयर्स हैं. इन द फॉलोइंग सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय 3. इमीडिएटली फॉलोड बाय 3 तो एक हो गया, दो हो गया, और कौन सा है? एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, और तो कोई दिख नहीं रहा. इमीडिएटली फॉलोड बाय 3. सर पर थर्ड वाला नहीं होगा ना सर, जो आपने एक 5 मिनट थी सर उसका पीछे से अरे अरे एक मिनट रुक जाओ यार. पहले मैंने ये ढूंढा कि इमीडिएटली फॉलोड बाय 3. अब मैं ये ढूंढ रहा हूँ कि बट नॉट प्रीसीडेड बाय 9. देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो पहली कंडीशन है उसको ढूंढ लो. इमीडिएटली फॉलोड बाय 3 वालों को अंडरलाइन कर दो. अब नॉट प्रीसीडेड बाय 7 वाले को हटा दो, तो इस वाले को हटा दो. सो योर आंसर विल बी 3. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 3 पेयर्स. So this is how the question is to be done. ये सीधे सीधे straight away Yug is saying option number D. No, Yug, you have done some mistake. The option number D नहीं, option number C will be the correct answer. ठीक है, because there are 3 pairs. One pair is this one pair is this one, another pair. One pair is 953, another pair is 253, and this will not be my pair because यहाँ पे 7 है, and the next pair will be this one. ठीक है, this will not be my pair. तो that is why the answer will be 3. चलो आगे बढ़ते हैं. हाँ भाई चलो इसमें आ जाओ.
सर 3. 3. Okay. Yes, sir. 3. 3. Yes, sir. 3. Sir, 3. C. 3. ठीक है, चलो भाई, everybody is Yes, saying sir, 3. everybody is saying 3. How many W's are there in the following series which are immediately followed by W but not immediately preceded by K? तो ढूंढ लो भाई, सबसे पहले सारे W's को मार्क कर दो ढूंढ के। सबसे पहले सारे W's को मार्क कर दो। देखो भाई, मैंने सबसे पहले सारे W's को और जो कंडीशन है उसके हिसाब से मैंने मार्क कर दिया। तो I am getting how many pairs? I am getting 2 pairs. आपको 3 pairs कैसे आ रहे हैं भाई? सर देखो सर, सर, वो डी second ट्रिपल pair डब्ल्यू में है ना first सर, और उसमें second सर दोनों और है। लास्ट में भी है, DK है ना उसके पहले. डी के है उसके पहले भी है, तो ठीक है भाई। देयर आर नहीं सर, डी के पहले वाला नहीं होगा ना सर, सर, वो फिर second W pair के में बाद- K आ रहा है। एक ये मिनट first रुक और जाओ जो यार। W है ना, Second- वो वाला pair है। सर हाँ, मतलब सेकंड सर पेयर वो में होगा देखो ना नहीं. सर WWD है, और फिर सर, तो उसके पहला और बाद दूसरा वाले हो तीन गया। खोलो तो WWW है, तो W से फॉलो कर रहा है, लेकिन K नहीं है पीछे से, उधर ही 2 पेयर हो जाएंगे डी ट्रिपल डब्ल्यू में। अच्छा, 2 ही पेयर हुए ना? कितना? व्हाट इज द आंसर यू नहीं गाइस? सर, नहीं सर, three एक तो होगा। पहले हो गया सर और इफ यू सी TW में इफ दो. यू सी डी एक एक ट्रिपल करके डब्ल्यू एक sir, करके if you बोलो। see D, if you see D triple W, sir, in that 2 pairs can be formed. One will be DWW and another will be WWW. Very good. So the correct answer will be 3. The correct answer will be 3. ठीक है, चलो। Let us move to the next question. चलो भाई, यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे क्या करना है? दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ सर तो फिर उसमें 3 W भी नहीं हो सकते वहीं पे? नहीं हो सकते। सर कंडीशन तो है वही, सेटिस्फाई तो हो जाता. देख लो यार, एक बार फिर से देख लेते क्या है। देख लो एक बार फिर से देख लेते क्या है। How many W's are there in the following series which are immediately followed by W but not immediately preceded by K? तो 3 W हो सकते हैं ना? क्यों नहीं हो सकते 3 W? Immediately followed by W, immediately followed by W but not preceded by K. So this can be there. This can be there. This also can be there. DWW can also be there. तो फिर सर 4 और- नहीं हो जाएंगे? और एक तो ये हुआ, तीन ही तो आ रहे, चौथा कौन सा आ रहा है भाई? अच्छा हाँ चौथा कौन सा सर, आ रहा है? WWD उसके बाद ही WWD. ये वाला किसकी बात कर रहे हो आप? पहला तो ये है DWW, ठीक है। और यहाँ पे दो पेयर्स ओके बन रहे सर, हैं। समझ गया सर. समझ गए सर? यहाँ हाँ, पे 2 समझ गया. पेयर्स बनने, तो वो 4 W पेयर। फॉलो करना है, वो पीछे आ गया था. ओके सर. ठीक है, चलो अब इसकी बात करते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज a jumped sequence of some letter, numbers and the symbols is given. The candidate is required to find out how many times a number or a letter or a symbol satisfying the condition specified occurs. Please solve this question. Very quick. एक ने बोला none of these, एक ने बोला 5. चलो आगे देखते हैं। सर नन ऑफ. Sir, I am also getting none of these. Yes, You sir, are none also of these. getting none of these. You are also getting none of these. सर मी टू. You are also getting none of this. चलो
देखते हैं भाई। दो ही पैर मिल रही है। दो ही पेयर मिल रहा है। एक तो पेयर मेरे को मिल रहा है विच आर ईदर इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय ए सिंबल और इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर, प्रीसीडेड बाय ए सिंबल फॉलोड बाय ए नंबर बट नॉट बोथ। तो पहला तो जो मेरे को ऑर्डर मिला है वो ये वाला मिला है। ठीक है, पहला जो देयर आर 8 सच पेयर्स बच्चों, देयर आर 8 सच पेयर्स, है ना। पहला सर जो आई वाज कंडीशन मींस आई वाज कंसीडरिंग बोथ ऑफ देम। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है बट नॉट बोथ। इट शुड बी लाइक देयर शुड नॉट बोथ, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए। व्हाई यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होने के लिए कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं? देखो भाई, एक तो मेरा के हो गया, दूसरा मेरा पी हो गया, तीसरा मेरा ये वी हो गया, चौथा मेरा एम हो गया, फिर ये ई हो गया, देन ये क्यू हो गया, देन फाइनली आई एम हैविंग दिस टी। सर इसमें एस वी और ई नहीं होना एस चाहिए ना? कौन सा? सर एस वी और ई। एस वी और ई कहाँ है भाई? कौन सा एस वी और ई, कौन सा वाला? कहाँ है जो बताओ। अंडरलाइंड है वो सर। अंडरलाइंड है वो ना, ये वाला नहीं, ये तो एस वी और ई नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं आप लोग? इसकी बात कर रहे हैं? सर एस वी और ई नहीं होंगे वो पैर में, ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा, मतलब एस अलग से, वी अलग से और ई अलग से, वैसे। एस अलग से, वी अलग से, ठीक है। तो द यू आर सेइंग दैट द आंसर इज देयर वोंट बी 8 पेयर्स, ऐसा आप लोग बोल रहे हैं क्या? 8 पेयर्स नहीं होंगे, ऐसा आप लोग बोल रहे हैं? व्हाट विल बी द आंसर? चलिए, see the answer can be incorrect also, the answer can be incorrect also, don't क्या बोलते हैं, the answer can be incorrect also, so let us try to find out, don't go into the answer, let us try to find out on ourselves, ठीक है। इसमें इधर तो सर ये तो इधर सिंबल से प्रीसीड हो सकता है या फिर नंबर उसके बाद भी हो सकता है। तो फिर एस के बाद तो 7 है तो वो भी होगी एक पैर, फिर वी के बाद 8 है तो वो भी एक पैर होगी, और ई के बाद 6 है तो वो भी एक पैर हो जाएगी। चलो ढूंढते हैं ना। what the question is saying that which is either immediately preceded by a symbol or followed by a number। सर एक मिनट रुक जा बेटा। preceded by a symbol की हम बात कर रहे हैं। preceded by a symbol तो एक तो पेयर ये हो गया, ठीक है। preceded by a symbol का एक पेयर ये हो गया, preceded by a symbol का and followed by a, preceded by a symbol and not followed by a number, preceded by a symbol and not followed by a number, 1 2 3, preceded by a symbol and not followed by a number, preceded by a symbol and not followed by a number। और ढूंढ लो भाई, preceded by a symbol and not followed by a number। इसके अलावा कोई और कोई पेयर है which is preceded by a symbol and not followed by a number? जरा चेक करो। KS7 KS7 preceded by a symbol but not, KS7 कैसे होगा यार? सर एक मिनट मतलब सर वो सेवन, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिकॉज नॉट बोथ है तो इट इज फॉलोड बाय ए नंबर एंड इट शुड नॉट बी प्रीसीडेड बाय ए सिंबल। चलो भाई, इस देखो एक एक करके केसेस को सॉल्व करते हैं। पहले हमने ये सॉल्व किया कि विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ए सिंबल बट नॉट बाय ए नंबर। इसमें कोई और अल्फाबेट बच रहा है क्या? देख के बताओ, इसमें कोई और अल्फाबेट बच रहा है क्या? विच इज प्रीसीडेड बाय ए सिंबल बट विच इज प्रीसीडेड बाय ए सिंबल बट नॉट फॉलोड बाय ए नंबर, ऐसा तो कोई नहीं बच सर रहा तो है। उस फॉलोड बाय सिंबल हो तो वापस अब हम करेंगे फॉलोड बाय ए नंबर बट नॉट प्रीसीडेड बाय ए सिंबल। तो फॉलोड बाय ए नंबर एंड नॉट प्रीसीडेड बाय ए सिंबल, तो ये तो मुझे एक मिल गया। फॉलोड बाय ए नंबर बट नॉट प्रीसीडेड बाय ए सिंबल, ये मुझे एक और मिल गया। फॉलोड बाय ए नंबर बट नॉट प्रीसीडेड बाय ए सिंबल, ये मुझे एक और मिल गया। फॉलोड बाय ए नंबर बट नॉट प्रीसीड, और कोई मिल रहा है क्या? नहीं सर, और कोई नहीं मिल रहा है ना? तो कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पेयर ही तो हुए यार। क्या गड़बड़ हो रही थी?
सही तो है? सर हम्म, इसमें लिखा है कि प्रीसीडेड बाय सिंबल, तो सर वो फिर फॉलोड बाय भी सिंबल हो तो चलेगा, वो उसको ले सकते हैं कि नहीं? preceded by a symbol or immediately followed by a number. हाँ, followed by सर symbol तो मतलब फॉलोड बाय प्रीसीडेड बाय सिंबल होगा, पर वो फॉलोड बाय भी सिंबल होगा, ये नहीं, जो followed by थीटा इज इक्वल टू और बीटा दिया हुआ है उसको ले नहीं सकते नहीं हैं नहीं क्या नहीं नहीं, वो नहीं ले सकते, वो नहीं ले सकते। ठीक है, सिंबल जो है वो अल्फाबेट के पहले आना चाहिए। सिंबल जो है वो अल्फाबेट के पहले आना चाहिए। तो सर चलो, ये जो बीटा है सर उसको क्या कंसीडर करेंगे, उसको तो लेटर भी कंसीडर नहीं नहीं करेंगे। नहीं नहीं, बीटा इज कंसिडर्ड एज सिंबल ओनली। अल्फाबेट्स, जो आपके अल्फाबेट्स हैं A to Z, that are only considered as letters, और जो आपके नंबर्स हैं 0 to 9, that are considered as numbers। इसके अलावा जो कुछ भी है, that everything is symbol। ठीक है भाई, चलो। ओके सर। How many consonants are there in the above arrangement, each of which is immediately followed by a consonant but not preceded by a symbol? पहले, सबसे पहले कॉन्सोनेंट को ढूंढ लो, और वैसे कॉन्सोनेंट को ढूंढ लो जिसके बाद कॉन्सोनेंट आए, वैसे कॉन्सोनेंट को ढूंढ लो जिसके बाद कॉन्सोनेंट आए, बट उसके पहले सिंबल नहीं होना चाहिए। भाई दीज क्वेश्चंस आर वेरी नाइस, दिमाग खुल जाता है इन क्वेश्चंस को करने में। चलो करो, आई एम गिविंग यू 2 minutes टाइम। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1। ठीक है, अब भाई इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जो 26 लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, 5 लेटर्स आर वोवेल्स एंड द रिमेनिंग आर द कॉन्सोनेंट। तो सबसे पहले हम उन कॉन्सोनेंट्स को ढूंढेंगे जो कॉन्सोनेंट हमारे गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं मतलब दे आर इमीडिएटली फॉलोड बाय ए कॉन्सोनेंट, they are immediately followed by a consonant but not immediately preceded by a symbol। उनके बाद में consonant होना चाहिए बट उनसे पहले सिंबल नहीं होना चाहिए। उनके बाद में consonant होना चाहिए बट उनसे पहले सिंबल नहीं होना चाहिए। So there is only one pair, that is this one। So the correct answer of this question was, the correct answer of this, अरे क्या हो सर गया? इसमें हमें 3 लेटर्स का सर हमें पेयर ढूंढनी है सर, 3 लेटर्स की, मतलब जहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव लेटर्स हो सर, फिर उसमें से बीच वाले लेटर को हम देख सकते हैं, अगर वो कॉन्सोनेंट है सर तो फिर हो जाएगा, मतलब इधर ऐसी 2 ही पेयर है, PLV और MUE। Yes, you can do that। Yes, you can do that। See, जब आप ज्यादा क्वेश्चंस करते हो तो उन क्वेश्चंस को करने के बाद आपके पास ट्रिक्स डेवलप होते हैं, आप खुद ही डेवलप करते हो ट्रिक्स। जब आप क्वेश्चंस को ज्यादा सॉल्व करते हो तो आपको उन क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास ट्रिक डेवलप होते हैं। तो इन चीजों को करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज, आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना आपको फायदा होगा। फॉर एग्जांपल, लेट मी टेल यू वन, let me discuss something with you, then I will proceed further। I will, what I will do here is I will add the position of Sanjana from both the points, that is from the right and from the left, and then I will add both of them and then I will subtract one, that will give me the answer। Lekin sir, what if I forget this? What if I forget this? Then how am I supposed to solve this question? Let me try to help you out on that also। Chalo, this is the situation। Not why it is not working। एक मिनट रुक जाओ यार, I don't know what has happened to this pen, it is not working today। चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। इन ए रो ऑफ गर्ल्स व्हाट इज हैपनिंग, मृदुला इज 18th फ्रॉम द राइट एंड संजना इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट। यहाँ पे कहीं पे मृदुला है और यहाँ पे कहीं पे संजना है। शी इज 18th फ्रॉम द राइट एंड शी इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर 17 persons आफ्टर संजना एंड देयर आर 17 persons आफ्टर मृदुला। दिस इज व्हाट नाउ आई एम टेलिंग यू टू हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम स्क्रैच। अगर आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इसे कैसे करेंगे मैं वो बता रहा हूँ। तो देयर आर 18 persons बिफोर मृदुला एंड देयर आर 17 persons आफ्टर मृदुला एंड 18 persons बिफोर मृदुला। Now what happens, both of them are exchanged
exchanging their position, both of them are exchanging their position. तो अब जो है दूसरे केस में क्या हुआ, मृदुला यहाँ पे आ गई और संजना यहाँ पे आ गई, and now Sanjana's position becomes 25th from the left. 25th फ्रॉम द लेफ्ट अगर इसकी पोजीशन होती है तो 18वीं पोजीशन पे ये थी और 25th पोजीशन पे ये है, तो हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन बिटवीन, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन बिटवीन 19, 20, 21, 22, 23, 24, so there are 6 persons in between them. There are 6 persons in between them, so the total persons will be 17 plus 2 plus 6 plus 17, that comes out to be 34 plus 8, which is equal to 42. See, I did this question from scratch. अगर मैं एग्जाम में जाने से पहले अगर मैं गजनी बन जाऊं, गजनी एक मूवी आई थी जिसमें कि this आमिर खान used to forget everything. तो अगर मैं एग्जाम में जाने से पहले मैं गजनी बन जाऊं तो हाउ आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज द मेथड. नाउ वन ऑफ यू विल से सर अगर आप गजनी बन गए तो हाउ कैन यू सॉल्व द क्वेश्चन, हाउ विल यू गो टू एग्जाम हॉल. उतना पूरा गजनी नहीं बनूंगा, थोड़ा थोड़ा गजनी बनूंगा, ठीक है. तो दिस इज हाउ द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व. हाँ बोलिए सर. पहले संजना सर 18th पे से और मृदुला दोनों सर 18th लेफ्ट और राइट में से थे. हाँ सर हाँ. तो फिर जब दोनों ने पोजीशन एक्सचेंज की सर तो फिर सेम ही नहीं होगा, सिर्फ मृदुला 18th पे आ गए और संजना 18th पे आ गए, बस डायरेक्शन चेंज हो गई. नहीं, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ. 18th फ्रॉम राइट थी बेटा. ये जो संजना है ये 18th फ्रॉम लेफ्ट है. लेफ्ट से यहां से काउंट कर रहे हो तब ये 18th है, और राइट से काउंट कर रहे हो तो ये 18th है. जब इन दोनों की पोजीशन चेंज हुई तो इसकी जो पोजीशन है वो लेफ्ट से काउंट करने पे 25th आई है. बात समझ में आई जी? इसकी जो पोजीशन है वो लेफ्ट से काउंट करने पे 25th आई है. एक काम हम लोग और कर सकते हैं, देखो इसकी पोजीशन लेफ्ट से काउंट करने पे 25th तो हमें पता चल ही गई है, और इसके बाद 17 पर्सन्स आर मोर, तो द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स विल बी 25 plus 17 which is equal to 42. What I am trying to say is, ये जो हमने सारी की सारी मेहनत की ये भी करने की जरूरत नहीं. सुनो मेरी बात, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ये हो गया मेरा संजना और मृदुला. एक बार फिर से कंडीशन को डिनोट करते हैं. संजना वाज हियर और इसकी पोजीशन 18th थी. देन मृदुला वाज देयर, इसकी पोजीशन 18th फ्रॉम इट वाज 18th फ्रॉम द राइट. सो देयर वर 17 पर्सन्स हियर. नाउ व्हाट हैपेंड, दे हैव इंटरचेंज देयर पोजीशन. ये यहाँ आ गई, ये यहाँ आ गई. ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है. अब जो है इसकी पोजीशन लेफ्ट से 25th हो गई. दैट मीन्स शी इज द 25th पर्सन फ्रॉम लेफ्ट, और इसके बाद देयर आर 17 मोर पर्सन्स. तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो गए? 25 plus 17 which is equal to 42. Is it clear? Is it clear what I did? Yes, परमार जी? Yes, sir. चलो सुने. श्रेय, इज इट क्लियर? सर ये जो मेथड सर जो अभी स्क्रीन पे पीपीटी में सर उसमें हम लोगों ने 18 plus 25 करके -1 क्यों किया? वही तो मैं बता रहा हूँ. पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट दिया, पोजीशन फ्रॉम राइट दिया, दोनों को ऐड करके -1 कर दिया. देखो ये मेथड मुझे नहीं समझ में आता. मैंने अभी बोला ना, अगर मैं गजनी बन जाऊं तो मैं क्या करूंगा. ये मेथड मैंने सिर्फ अपने पास इसलिए रखा है कि अगर आपको समझाते वक्त मुझे सवाल नहीं समझ में आया तो आई कैन दिस इज एस्केप रूट फॉर मी, कि भाई मैं आपको बोलूंगा देखो भाई दिस इज द मेथड, उसको समझ के मैं आपको क्लास में समझा सकता हूँ. दैट इज व्हाई आई हैव केप्ट दिस फॉर विथ मी. हाँ, एक और फायदा है इसका कि इफ अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट इट, आई कैन गिव यू एंड आई कैन टेल यू दैट हाँ भाई देख लो, इसको पढ़ लो, अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताओ. दैट इज ऑल्सो द थिंग. बट
but the exact method is, I think this one will be the better, this one is the best approach, क्योंकि इसकी पोजीशन अभी जो है, इसकी पोजीशन 25th है, 25th from left है इसकी पोजीशन, और इसके बाद there are 17 persons, so the total number of persons will be 25 plus 17 which is equal to 42. स्तुति एंड करिश्मा प्लीज कंफर्म ये मेथड सॉल्व समझ में आया? जो मैंने बाद में लिखा है, जो मैंने बाद में लिखा है, क्या ये समझ में आया यस आप? सर। ठीक, चलो चलो फिर आगे चलते हैं। सर मेरे को -1 उसमें क्यों किया वो समझ नहीं आ रहा। बेटा -1 इसलिए किया है, बेटा -1 इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे ये जो संजना है ये 2 बार काउंट हो रही है। -1 इसलिए किया है क्योंकि यहाँ जो संजना है वो 2 बार काउंट हो रही है। एक बार जब आप 18 तक काउंट कर रहे हो तब भी संजना काउंट हो रही है, एक बार जब 25 तक काउंट कर रहे हो तब भी संजना काउंट हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे -1 किया है। ठीक है, ये जो इन बिटवीन होता है, ये जो इन बिटवीन होता है, जैसे मेरा जो तरीका, मैंने जो अपना पर्सनल तरीका बना के रखा है वो ये बना के रखा है कि अगर मुझसे कोई पूछता है कि हाउ मेनी डेज आर बिटवीन संडे एंड से सैटरडे, मैं संडे और सैटरडे को काउंट नहीं करता हूँ। अगर मुझसे कोई पूछे हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन 10 and 1, what I will do is I will not count this 10, I will not count this 10 and I will not count this 1, लेकिन 10 - 1 का डिफरेंस करते हैं तो हमें 9 मिलता है। वो इसलिए मिलता है क्योंकि इट ऑल्सो काउंट्स दिस 10। 10 - 1 करोगे तो 9 मिलेगा, लेकिन 10 और 1 के बीच में सिर्फ 9 ही नंबर, सिर्फ 8 ही नंबर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, दिस इज द कंडीशन, दैट इज द फैक्ट। बस आपके देखने का और समझने का फर्क है और कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Anil and Sunil are ranked 7th and 11th respectively from top in a class of 31 students. What will be their respective ranks from the bottom in the class? अब ये bottom in the class के पहले एक बात मैं बता दूं, अभी आप लोगों को AP मैंने नहीं पढ़ाया है। AP में जब आपको पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को ये चीज और क्लियरली समझ में आएगी। इस क्वेश्चन को लेट मी हेल्प यू आउट। हम लोगों ने जब अल्फाबेट सीरीज पढ़ी थी तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि पोजीशन फ्रॉम स्टार्टिंग, अगर ए की पोजीशन स्टार्टिंग से 1 है तो अगर मैं सीरीज, अगर मैं ए बैक काउंटिंग करता हूं, अगर मैं जेड को 1 दे देता हूं तो ए की पोजीशन 26 आती है। व्हाट आई एम सेइंग हियर, अगर ए की पोजीशन, व्हाट इज हैपनिंग हियर? What I'm saying here, एक मिनट रुको यार, let me, I think I should restart this. Just एक मिनट, हाँ। And if from start, A की position, if from starting, if it is 1 and if I'm back counting, then A की position आती है 26 और 1 plus 26, 1 plus 26, A की position from starting is 1, from the back it is 26 and 1 plus 26 is nothing but 27. ठीक है, किसी लेटर M की बात कर लो, M की पोजीशन फ्रॉम स्टार्टिंग इट इज 13, फ्रॉम बैक इट कम्स आउट टू बी 14 एंड 13 + 14 इज इक्वल टू 27। तो होता क्या है when we will read this AP, I will tell you this in detail कि ऐसा होता कैसे है, क्यों होता है। बट हमें क्या करना है, अगर मान लो किसी लेटर की पोजीशन या किसी पर्सन की पोजीशन, जैसे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कि अनिल की पोजीशन इज, अनिल इज रैंक्ड 7th, अनिल इज रैंक्ड 7th फ्रॉम टॉप। अगर अनिल की पोजीशन टॉप से 7th है तो बॉटम से जो उसकी पोजीशन होगी दैट विल बी 31 + 1 - 7, that is equal to 32 - 7, which is equal to how much, what is the value you are going to get? 25. 25. So it will be 25th. So the correct answer will be, I think, option number C will be the correct answer of this question. So this is what, सर एक मिनट सर, वापस कर सकते हैं ये 31 + 1 - 7 क्यों किया? बेटा इसकी पोजीशन टॉप से कितनी दी हुई है? 7th पोजीशन दी हुई है। अनिल की पोजीशन टॉप से 7th दी हुई है। टोटल नंबर ऑफ पर्संस 31 थे तो मैंने क्या किया, 31 + 1 - 7 कर दिया। द रिजल्ट इज 25।
ठीक है। 32 सर माइनस +1 क्यों किया? +1 क्यों किया, वही तो इतनी देर से बता रहा हूँ कि +1 इसलिए किया क्योंकि पोजीशन फ्रॉम टॉप एंड पोजीशन फ्रॉम बॉटम दोनों को जब आप ऐड करते हो तो द रिजल्ट इसमें जो है, इसकी पोजीशन टॉप से 7th है और इसकी पोजीशन बॉटम से जो आएगी, दोनों का जो सम आएगा दैट विल कम आउट टू बी 32। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की चीज है, दैट आई विल टेल यू व्हेन वी विल डील विथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर। ठीक है, इसको हम डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर की बात करेंगे। दिस इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन वी हैव मेड द फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ देखो ना, ए की पोजीशन फ्रंट से 21 है, बैक से अगर मैं z को 1 दे देता हूं तो इट बिकम्स 26। दोनों का जो सम आता है दिस इज 26 + 1 दैट इज 27। बी की पोजीशन फ्रंट से 2 है, बैक से इसकी पोजीशन 25 है, द सम इज 27। एम की बात कर लो, इसकी पोजीशन 13 है, इसकी पोजीशन 14 है, दोनों का सम है 27। So that is why we add number of alphabets +1. This is what? This is number of alphabets +1. This is number of alphabets +1. This is what we have observed, and on the basis of that we have made a formula. This formula is based on the observation. ठीक है? ओके सर। चलो आगे बढ़ो। फाइन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, यहाँ इन्होंने कुछ आंसर गलत दिया हुआ है क्या? नो, ठीक है। चलो भाई इस क्वेश्चन में आ जाओ। द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस वन। द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऑर्डर टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं? ऑर्डर टेस्ट में हम क्या करते हैं, इसमें हम जो है डिफरेंट पर्सन्स का ऑर्डर बताते हैं कि भाई कौन सा पर्सन के इनके हाइट का या इनके वेट का, इन सारी चीजों का हम ऑर्डर बताते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। चलो ट्राई दिस क्वेश्चन। यू गाइज हैव 1 minute फॉर इट। A is shorter than B but much taller than E। भाई जो A है, भाई एक तो हमारा B हो गया, एक तो हमारा मान लो B हो गया, B से बड़ा है हमारा A, एंड A is shorter than B, A is shorter than B but much taller than E। but much taller than E मतलब यहाँ पे जो ये वर्ड much taller है, इसका मतलब ये है कि ये इससे बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, जैसे आप अगर 10th स्टैंडर्ड में हो और दूसरा अगर कोई बच्चा, मान लो आपका छोटा भाई बहन या कोई भी आपके पड़ोस में जो है वो अगर 1st स्टैंडर्ड में है, तो आप उससे बोलोगे बेटे तू अभी बहुत बच्चा है, दिस इज व्हाट यू से। लेकिन 9th वाले को आप ये नहीं बोलोगे, 9th वाले को आप ये बोलोगे आई एम सीनियर देन यू, बिहेव लाइक ए जूनियर। आप इस तरीके से बोलोगे, बोलते ही होगे कहीं ना कहीं को, कभी ना कभी ये बातें आती होंगी। लेकिन आप 1st स्टैंडर्ड या 2nd स्टैंडर्ड वाले को क्या बोलोगे? बेटे अभी तू बहुत बच्चा है, चल बाद में बात करियो मेरे से। ठीक है, दिस इज व्हाट इज द मीनिंग हियर। E is much, B is much, this A is shorter than B but much taller than E। that means A जो है, A is in 10th standard and E is in say 1st standard or 2nd standard। C is the tallest, भाई C जो है वो टॉलेस्ट है, इनको टॉलेस्ट बना दो। एंड D is shorter than A and taller than E, तो भैया यहाँ पे D बना दो, हो गया। CBADE, who is the shortest, क्या होगा आंसर? दिस विल बी आंसर, खत्म। यही तो करना था, क्या करना था, कोई रॉकेट साइंस थोड़े ना भाई। चलो आ जाओ इसमें। किसी भी सवाल में कोई कहीं पे भी कोई भी रॉकेट साइंस नहीं होती है, बट बात ये होती है कि हमें सवाल को करना कैसे, हमें सवाल को करना आना चाहिए। सर ए चलो आई एम नॉट श्योर, आई जस्ट सी इट। सी हाँ सर, सर C। सी, हाँ मेरा सी आ रहा है। सर C। EDCA भी बना है। सर सी होगा। हाँ सर, सॉरी सर। EDCA भी। ये सर सी होगा। आज वो नहीं है क्या क्लास में? श्रेय, यू आर नॉट इन द क्लास? नहीं है शायद, बिकॉज़ इज नॉट सर मेरा BACD No, sir, मतलब वही नहीं। हुआ था। क्या बोल रहा है बेटा? कुछ नहीं सर, मैं बोला BACD वो वही हुआ। अच्छा ठीक है, चलो देख लेते हैं भाई, लड़ो मत यार, देख लेते हैं क्या है।
A is richer than B, C is richer than A। भाई पहले पेन को चला लूं, नहीं तो आंसर आ जाएगा तो फिर इंटरेस्ट चला जाता है। A जो है वो B से, A जो है वो B से ज्यादा रिच है, एंड C इज रिचर देन A, तो C जो है वो A से ज्यादा रिच है। D इज रिचर देन C, भाई ये भी हो गया, एंड E इज द रिचेस्ट ऑफ ऑल। पूछना क्या चाहते हैं? If they are made to sit in the above degree of richness, who will be the in the middle position? देखो भाई मिडिल पोजीशन में चाहे इंक्रीजिंग टू डिक्रीज, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, मिडिल पोजीशन में तो भाई सी ही आएगा ना। सर अबाउट डिग्री ऑफ रिचनेस मतलब कैसे होगा? पुअर Above से रिच या रिच से पुअर? कोई फर्क पड़ रहा है क्या आंसर में? आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर, है? मतलब वो फर्स्ट पूछ लिया होता तो फिर वैसे पूछ। देखो अगर फर्स्ट पूछा होता तो टर्म यहाँ पे होता रिचेस्ट। अबव डिग्री ऑफ रिचनेस का मतलब ये हुआ, अबव डिग्री ऑफ रिचनेस का मतलब मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि फ्रॉम द पुअरेस्ट टू द रिचेस्ट, फ्रॉम द पर्सन हु इज द लीस्ट रिच टू द पर्सन हु इज मोस्ट रिच। इस टाइप का अरेंजमेंट इनको चाहिए था। But since they have not said anything, since they have, see, they should ideally they should have written here in the ideally they should have written this thing in the what do we say, in the best possible manner, ताकि हमें समझ में आए। Ideally they should have written it like that कि हमें समझ में आए कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। ये अबव डिग्री ऑफ रिचनेस का मतलब भाई मेरी समझ से बाहर है, लेट मी बी वेरी फ्रैंक टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। लेकिन बात क्या है, मुझे समझ में आए या ना आए, मेरा एम ये होना चाहिए कि मुझे मार्क्स मिलने चाहिए। देखो यहाँ पे क्या पूछा है, हु विल बी इन द मिडिल, तो मिडिल में तो भैया एक ही पर्सन आएगा, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले लो, सी विल बी द आंसर। सर अगर मान लीजिए टॉप या बॉटम पूछा होता, रिचेस्ट या पुअरेस्ट पूछा होता, तो उस केस में हमें ये क्लियरली मेंशन कर देते। सर अगर मान लीजिए 6 लोग होते, तो 6 लोग होते तो बेटा 6 लोगों का एवरेज नहीं निकलता है, 6 लोगों में आप मिडिल वैल्यू नहीं बता सकते। तो सेंटर नहीं पूछते, कुछ और पूछते। सेंटर नहीं पूछते, कुछ और पूछते, वेरी गुड। 6 लोगों में आप मिडिल वैल्यू नहीं बता सकते हो, वो सेंटर नहीं पूछ सकते थे, वो कुछ और सर सेकंड थर्ड या वैसे कुछ पूछ लिया। सेकंड थर्ड या वैसे कुछ पूछते, ठीक है। जब सवाल आता तो देखते यार अब कल क्या होने वाला है, इसकी वजह से मैं आज अब तक बीपी क्यों बढ़ाऊं। मुझे ये देखना है कि मुझे इस सवाल को, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया है, मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बस। These questions are not your friends, these questions are your enemies. You have to defeat them daily. रोजाना कोरोना वायरस से लड़ते हो ना, These questions are your enemies. आप इनको डिफीट करोगे तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे, अगर इन क्वेश्चंस ने आपको डिफीट कर दिया तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। चलो, हाउ मेनी नाइन्स आर देयर। अब भाई देखो कुछ एनटीएससी के सवाल कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हाउ मेनी नाइन्स आर देयर विच कम आफ्टर 6 और मल्टीपल ऑफ 3। ध्यान से करना सवाल को, क्योंकि ये सवाल बहुत ही अच्छा था, इस सवाल को करने में थोड़ा समय लगा था। ध्यान से करना इस सवाल को, ठीक है। टाइम दे देता हूँ, चलो 2 मिनट का टाइम, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, 1 मिनट से ज्यादा का समय नहीं चाहिए, है ना भाई। these are the pairs, देख लो भाई कौन कौन से पेयर्स हैं। 69, 99, 99, 69, 69, 69, 69, 99, 99, 99, 69. So the correct answer of this question will be 11. सर 9 के बाद वो आना चाहिए या 9 के पहले? कौन सा 9 उसके बाद आना चाहिए, मतलब 9 के पहले आना चाहिए। क्या 9 के बाद 9 के पहले क्या सर बोल रहे हो? सर 9 के बाद 6 या मल्टीपल का 3 आना चाहिए, 3 का मल्टीपल, या फिर 9 के पहले 6 या 3 का मल्टीपल आना चाहिए? 9 के पहले आना चाहिए सर, क्योंकि इधर लिखा है कि हाउ मेनी नाइन्स आर देयर व्हिच कम आफ्टर द 6। आफ्टर 6 दिया हुआ है ना। अच्छा तो मैं उसके क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं और कंफ्यूज होते रहोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं और कंफ्यूज होते रहोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना।